اس ویڈیو میں جس ٹاپک پہ میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں اس کا ٹائٹل ہے حرام و حلال۔ ہم سبھی کو یہ جاننا بہت ہی ضروری ہے کہ دنیا کی کون سی چیز حرام ہے اور کون سی چیز حلال ہے، کیونکہ جب تک ہمیں یہ نہیں معلوم رہے گا کہ دنیا کی کون سی چیز حرام ہے تب تک ہم لوگ اپنے کو اس چیز سے بچا کر رکھنے میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ اوکے؟ تو پھر کیسے پتہ چلے گا، اس کی نشانی کیا ہے، کیسے ہم جان پائیں گے کہ کون سی چیز حرام ہے اور کون سی چیز حلال ہے؟ تو اس کے لیے آپ کو قرآن شریف اور صحیح حدیث کو اچھے سے پڑھ کر اور اچھے سے سمجھنا ہوگا، یعنی قرآن شریف اور صحیح حدیث کو پڑھ کر صحیح سے اسے سمجھنا ہوگا، یعنی اس کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ لیکن کھانے سے کنسرننگ، کھانے اور پینے سے کنسرننگ قرآن شریف اور صحیح حدیث میں جو بتایا گیا ہے اس کے روشنی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ویسی چیز، ویسی کھانے اور پینے کی چیز جس کے کھانے یا پینے سے نشہ آ جاتا ہے اور عقل ماری جاتی ہے، وہ چیز حرام ہے، یعنی اس چیز کا صرف کھانا اور پینا ہی حرام نہیں ہے بلکہ اس کا کاروبار بھی حرام ہے، اس کا بیچنا، خریدنا، بنانا سب کچھ حرام ہے۔ جیسے شراب حرام ہے، ڈرگس حرام ہے، تمباکو حرام ہے، اور سب سے اہم اور ایک اہم بات میں کہنا چاہوں گا کہ غصہ بھی حرام ہے، کیونکہ غصہ کرنے سے بھی غصے کی حالت میں عقل ماری جاتی ہے، عقل کام نہیں کرتی ہے، اس لیے غصہ کو بھی حرام کہا گیا ہے۔ یہ کوئی کھانے اور پینے کی چیز نہیں ہے، میں نے اسے الگ سے آپ کو بتایا۔ تو میں بتا رہا تھا شراب اور ڈرگس اور تمباکو حرام ہے۔ تو شراب اور ڈرگس کے بارے میں تو سبھی کو پتہ ہے، سبھی جانتے ہیں کہ شراب اور ڈرگس حرام ہے، سبھی ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن عموماً لوگ عام طور پہ تمباکو کو حرام نہیں مانتے ہیں۔ جہاں تک مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ تمباکو کو حرام اس لیے نہیں مانتے ہیں کیونکہ اس میں نشہ کم ہے، اس میں نشہ کم ہے۔ تو ذرا بتائیے کہ شراب جو حرام ہے، اگر اس کے 1 یا 2 ڈراپ کو ہم پیتے ہیں تو یقیناً 1 یا 2 ڈراپ سے تو نشہ نہیں ہوگا، شراب کے 1 یا 2 ڈراپ سے تو نشہ نہیں ہوگا، تو کیا 1 یا 2 ڈراپ شراب کا 1 یا 2 ڈراپس حلال ہو جائے گا؟ نہیں۔ جس چیز کو اللہ نے حرام کہہ دیا اس کا 1 یا 2 ڈراپ بھی حرام ہوگا اور زیادہ مقدار بھی حرام ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح سے تمباکو بھی، چاہے اس میں نشہ کم ہے تو بھی وہ حرام ہے۔ اب آئیے میں بتاؤں کہ بازار میں یہ کس کس شکل میں ملتا ہے۔ تو یہ کھینی کے شکل میں ملتا ہے، گٹکا کے شکل میں ملتا ہے، سگریٹ کے شکل میں ملتا ہے، اور پان میں موجود زردہ کے شکل میں ملتا ہے۔ تعجب تو یہ ہے کہ کچھ لوگ اس کے اتنے عادی ہو چکے ہوتے ہیں کہ مسجدوں میں بھی چھپا کر اسے کھایا کرتے ہیں، انہیں اس بات کا بھی خیال نہیں رہتا ہے کہ یہ حرام ہے، اللہ نے اسے حرام کہہ دیا ہے، اور جس جگہ وہ کھا رہے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے۔ تو ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔
शराब और ड्रग्स से तो लोग परहेज करते हैं, लेकिन आम तौर पे लोग तंबाकू से परहेज नहीं करते हैं, जबकि इससे भी परहेज उसी तरह से करना चाहिए जिस तरह से परहेज शराब और ड्रग्स से करते हैं। और हाँ, सिर्फ तंबाकू को खाना ही नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि इसके कारोबार को भी छोड़ना चाहिए। यानी तंबाकू का खाना, तंबाकू का बनाना, तंबाकू का बेचना, तंबाकू का खरीदना, ये सब हराम है। और मैं बता दूं कि जो चीज़ हराम है उसका माहौल तो इतना ख़राब है कि वह हलाल चीज़ को भी हराम बना देता है। जैसे कि अगर शराब जो हराम है उसके साथ अगर पानी पी रहे हैं तो पानी जो एक हलाल चीज़ है वो शराब के साथ हराम हो जाता है। और अगर कोई नेक अमल है, नेक अमल खाने पीने की चीज़ से हटकर अब मैं बात कर रहा हूँ, कोई अगर नेक अमल है जैसे गरीब की मदद कर रहे हैं जो एक नेक अमल है, लेकिन अगर वह नेक अमल हराम पैसे से हो रहा है तो उस नेक अमल को जायज़ नहीं कहा जाता है, नाजायज़ कहा जाता है, यानी एक तरह से हराम कहा जाएगा। और मैं बता दूं कि इतना ही नहीं, अगर कोई नेक काम करने जा रहे हैं लेकिन नीयत नेक नहीं है, नीयत हराम की है, तो वह अच्छा काम भी नाजायज़ हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप सेब की खेती करने जा रहे हैं तो सेब की खेती तो अच्छा काम है, ठीक है, ये एक कारोबारी काम है। लेकिन अगर यह नियत करते हैं कि सेब से शराब बनाना है तो जान लीजिए कि फिर जिस वक्त से आपने नियत किया तब से जो भी काम आप करने जा रहे हैं वो सब नाजायज़ हो जाएगा। यानी नियत कर लिया कि सेब से शराब बनाना है तो फिर उस सेब को बेचना, खरीदना, सब कुछ नाजायज़ हो जाएगा, यानी एक तरह से हराम हो जाएगा। और मैं बता दूं कि वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हराम है, लेकिन मैं मुख्तसर में बता रहा हूँ। साथ ही अमल की बात किया जाए तो सूद लेना और सूद देना और इसका कारोबार ये भी हराम है, अल्लाह ने मना कर दिया है। यहाँ तक कि अगर आप किसी को सूद दिलवा रहे हैं, आप गारंटर बन रहे हैं, तो भी आप गुनहगार हैं, वो भी हराम है। साथ ही मैं बता दूं आपको कि बेईमानी से कमाया हुआ पैसा, गबन करके कमाया हुआ पैसा, जुए से कमाया हुआ पैसा, ये सब हराम है, ये सब का सब हराम है। और रिश्वत देना और लेना, यानी रिश्वत से कमाया हुआ पैसा, ये सब हराम है। और मैं बता दूं कि ज़्यादातर जानवर को छोड़कर कुछ ही जानवर हमारे लिए हलाल है, ज़्यादातर जानवर हमारे लिए अल्लाह ने हराम कर दिया है। और जो जानवर हलाल है और वो मर जाता है तो मरने के बाद वो हलाल जानवर भी हराम हो जाता है, लेकिन मछली को छोड़कर, मछली ज़िंदे में भी हलाल है और मर जाने के बाद भी वो हलाल है। और मैं आपको बता दूं कि दुनिया की जितनी भी चीज़ हराम है वो इसलिए हराम है क्योंकि अल्लाह ने उसे हराम करार कर दिया है, और हलाल है तो सिर्फ इसलिए कि अल्लाह ने उसे हलाल कहा है। जैसे मैं एक मिसाल दूं कि अगर हलाल चीज़ को भी अल्लाह कह देता है कि वो हराम है, हलाल चीज़ को भी हराम कह देता है, तो फिर वो हराम हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे रमज़ान में रोज़ा रखना नेक अमल है, फ़र्ज़ है, लेकिन अल्लाह ने ईद में रोज़ा रखने को मना कर दिया है, तो ईद का रोज़ा हराम हो जाता है, जबकि वो पहले हलाल था, यानी जायज़ था, और अल्लाह ने मना कर दिया तो वो हराम हो गया। इसी तरह से कुछ हराम भी है, लेकिन कुछ हराम चीज़ भी ऐसी है कि कुछ सिचुएशन ऐसा आता है जिसमें अल्लाह ने हराम को भी हलाल कर दिया है। जैसे कि मान लीजिए मुझे खाने को नहीं मिल रहा है और ऐसा लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन उस वक्त कहीं से मुझे मरा हुआ जानवर मिल गया जो हराम होता है, सभी जानते हैं हराम होता है, लेकिन अगर जान मेरी जा रही है और अपनी जान को बचाना है तो फिर उस वक्त जो हराम
जानवर है, मरा हुआ जानवर है, उसको भी अल्लाह ने हलाल कर दिया। तो वो हलाल क्यों हो गया? इसलिए कि अल्लाह ने कह दिया। यहाँ तक कि उस सिचुएशन में शराब को भी हलाल कहा गया है। तो क्यों हलाल हो गया? इसलिए कि अल्लाह ने उसको हलाल उस सिचुएशन में कर दिया। लेकिन हाँ, इसके साथ दो कंडीशन है, जान बचाना है तो, और दूसरा उतने ही मकदार में खाना है, उतनी ही क्वांटिटी में खाना है जितना खाने से आपकी जान बच जाती है। यानी ये नहीं कि अगर हलाल कर दिया गया तो जितना चाहें आप खा लें, वैसा भी नहीं है। सिर्फ जान बचाने तक उतना ही मकदार खाना है आपको। तो इस वीडियो में मेरा मकसद मेन ये बताना था कि तंबाकू भी हराम है। जनरली ड्रग्स को और शराब को सभी लोग समझते हैं कि हराम है, लेकिन तंबाकू को नहीं समझते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि तंबाकू को भी वैसे अवॉइड करें जैसे अवॉइड करते हैं हम सभी ड्रग्स को और शराब को। और एक और भी बात मैं कहना चाहूँगा कि तंबाकू सेहत को भी ख़राब करता है, जैसे ड्रग्स सेहत को ख़राब करता है, शराब सेहत को ख़राब करता है, उसी तरह से तंबाकू भी सेहत को ख़राब करता है। अगर थोड़ी देर के लिए आप ये सोचते हैं कि नशा तो नहीं आता है हमको, तो कम से कम ये तो सोचिए कि आपकी सेहत को ख़राब कर रहा है। आप अपनी सेहत को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? सेहत तो एक नेमत है। अगर अपनी सेहत को बर्बाद करेंगे तो अल्लाह ताला नाखुश होगा, क्योंकि अल्लाह ताला की दी हुई ये सेहत एक नेमत है जिसे अल्लाह ने दिया है। अगर आप इसे बर्बाद करेंगे तो हम सभी से पुरसिश होगी कि अल्लाह की नेमत को क्यों आपने बर्बाद किया, क्यों उसकी नाशुक्री किया। तो कम से कम ये सोच के नहीं यूज़ करें कि वो आपकी सेहत को ख़राब करता है, मुआशरा को भी ख़राब करता है। अगर हम बड़े हैं और हम उसका इस्तेमाल करेंगे तो मेरे बाल बच्चे भी उसको ये सोच कर खाएंगे कि मेरे जब वालिदैन खा रहे हैं तो फिर मैं क्यों नहीं खाऊं। जब वालिदैन इस काम को कर रहे हैं तो यकीनन वो काम दुरुस्त है, सही है, राइट है, तो फिर मुझे भी उस काम को करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं से अगर हम बड़े इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम अपने बच्चों को भी बिगाड़ रहे हैं, उन्हें मिसगाइड कर रहे हैं। तो कम से कम ये तो सोचें। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि तंबाकू ना खाएं, ना किसी को खिलाएं, ना इसका कारोबार करें, ना खरीदें और ना बेचें। थैंक यू।